हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सनराइज, द पोएम बाय पद्मा सचदेव। एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट द poet Padma Sachdev, and later on we shall see the poem, or we shall discuss the poem in brief. सो फ्रेंड्स, पद्मा सचदेव कौन है ये पहले हमें जान लेना है यहाँ पे। तो पद्मा सचदेव एक ऐसी पोएट है, एक ऐसी लेखिका है, एक ऐसी राइटर है जिन्होंने अपनी मदर टंग डोगरी लैंग्वेज में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, उनका जन्म जो है वो जम्मू में हुआ था और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है डोगरी लैंग्वेज, तो उसका इन्फ्लुएंस उनके वर्क्स पे बहुत सारा हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये जो पद्मा सचदेव जी है, उनके पिता जो है वो एक स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर थे, और उन्होंने बहुत सारे पद्मा सचदेव जी को बहुत सारे संस्कृत श्लोक भी सिखाए हुए थे। और वहाँ के लोकल फोक सॉन्ग्स जो है वो भी पद्मा सचदेव जी ने मेमोराइज किए हुए थे, और उसका इम्पैक्ट जो है उनके जो पोएम्स है या फिर शॉर्ट स्टोरीज है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो उन सभी पे हमें उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, पद्मा सचदेव, शी इज़ अ वेरी चार्मिंग, delightful person, and she is a very lively person. She is lovable, with homely qualities. She is a good housewife, excellent cook, entertaining hostess, and so many what we can say adjectives we can add to her personality when we can define, or we can what we can say, talk about her. So she has a very strong willpower. So many health issues were there in her life, and then also she produced a lot of works of literature, a lot of works of literature, and she had contributed a lot, especially in her mother tongue Dogri, and in Hindi language also. That means writing, she wrote in both the languages, her mother tongue Dogri and national language Hindi. And she has to her credit 6 collections of Dogri poetry, 8 books of Hindi prose, including 2 novels, 1 collection of short stories, and an autobiography, a travelogue, and more than half a dozen of translations. So friends, apart from that, she has received many more prestigious awards. बहुत सारे awards से भी उन्हें सम्मानित किया गया हुआ है। और उनमें अगर हम देखें तो she received Sahitya Academy Award at the young age of 30 for her first collection of Dogri poetry, then Soviet Land Nehru Award, Hindi Academy Puraskar, then UP Hindi Academy Puraskar, Raja Ram Mohan Roy Puraskar, then Joshua Poetry Award, and Jammu and Kashmir government's Robe of Honor. Friends, she was born in Jammu. I told you before also that she belonged to Jammu, and that is the reason why her mother tongue was Dogri, and lot of influence of the Dogri language and the folk songs of Dogri had been seen in the collections or writings of Padma Sachdev. So friends, today we are going to discuss about her poems. Her poem Sunrise. Before that, we shall see certain works which she had written in her Dogri language, or in Hindi language. So friends, many more poems and short stories she had written, but see, Tawi Te Chahan, this collection of poetry, it contains 2 types of poems, rhymed and unrhymed. So ये जो collection of poem है, 2 नदियों पे लिखा हुआ है। एक है तावी रिवर, और दूसरी है चिनाब। सो ऐसे ही बहुत सारे कलेक्शंस उन्होंने लिखे हुए हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं ये पोयम सनराइज, और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन।
सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है सनराइज, it is written actually in Dogri language, but later on it has been translated into English language by Dr. Karan Singh, and it has a lot of we can see the lot of impact of Dogri folk song in this poem especially. And the poem conveys the message that just as nature's phenomena follows a once for all set pattern and rule, the ways of human behavior should also follow the set norms, otherwise they are sure to verge um, on the step of arrogance. That means नेचर ने एक कुछ रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं जिनकी वजह से जो कि सबके लिए एक समान है। विश्व में अगर हम देखें तो सभी पुरुष और स्त्री की क्वालिटीज़ जो अगर हम देखें तो वो समान हैं। नेचर किसी भी प्रकार से हम लोगों में भेदभाव नहीं करता कि ये क्लास 1 बिलोंग करता है, क्लास 2 से बिलोंग करता है, ये फिर ये उच्च वर्णीय है या फिर ये नीच कुल में जन्म हुआ है इसका, तो या फिर ये प्राणी है या फिर ये मनुष्य है। तो ऐसे किसी भी प्रकार से नेचर डू नॉट डिफरेंशिएट अमंग द humans or animals or any of his creations. That means there are certain rules of natures, and due to that only uh, there is harmony in the universe. But अगर हम देखें कि अगर ये रूल्स बदल जाए तो शायद हमारी अरोगेंस जो है उसमें इंक्रीज हो सकता है या फिर हमारी अरोगेंस बढ़ सकती है। तो ये बात हमें यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोएम में समझाई हुई है। सो फ्रेंड्स, लेट अस टर्न टुवर्ड्स द पोएम सनराइज बाय पद्मा सचदेव। द सन वाज डिसेंडिंग like a cataract in the eye of the sky. The rain was constantly splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. So friends, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और ये जो सन है इट इज़ अनेबल टू गेट राइज्ड। दैट मीन्स उसको टाइम लग रहा है क्योंकि बादल छाए हुए हैं और बादलों के पीछे कहीं पे ये सन है या फिर सूर्य है, और ये सूर्य का जो सनराइज़ है या फिर क्या कह सकते हैं हम, जो सूरज जो उगता है उसको उगने के लिए टाइम लग रहा है या फिर सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ने के लिए उसको टाइम लग रहा है। उसका ये कारण है कि बादल पूरी तरह से आकाश में छाए हुए हैं और ये छाए हुए जो बादल है तो वो पूरी तरह से सन को भी कवर कर रहे हैं और सन ऐसा लग रहा है आकाश में जैसे कि एक कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट का मीनिंग होता है कि हमारी आइज़ में जो हमारा ये आइज़ है उस पर अगर कुछ पर्दा आ जाए तो हमें दिखने में दिक्कत होती है। उसी तरीके से इस सन पर भी क्या हुआ है, बादल छाए हुए हैं और उसी की वजह से वी आर अनेबल टू सी द सनराइज in the morning. So this is the situation which has been described here. और ये जो रेनिंग हो रही है कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्काई को क्लीन करने में लगी हुई है कहीं। So friends, what next the poet says, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. So the cloud was thundering in anger. Why? Because there was raining, heavy raining, and the clouds have covered the sky. Sky को पूरी तरह से clouds ने ढक लिया था. Again and again there was raining, and the raining was trying to wash out the clouds, but it was unable to wash out the clouds. And that is the reason why the sky was thundering in anger. ऐसा उन्होंने यहाँ पे
कहा हुआ है पद्मा सचदेव जी ने। बहुत ही सुंदर सी मेटाफर यहाँ पे उन्होंने यूज किया हुआ है। क्लाउड्स को, सॉरी स्काई को वो कहती है कि एंड इट वाज थंडरिंग इन एंगर। द थंडरिंग इन एंगर, द ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू द क्लाउड्स and the sky. So next what she says here, the sun seizing the opportunity pushed the clouds away and crept out like a schoolboy, quickly entering and covering at the back of the class to evade attention of angry schoolmaster. Here the sun is compared with the schoolboy. Actually, the schoolboy is the sun. यहाँ पे सूरज को उन्होंने स्कूल बॉय से कंपेयर किया हुआ है। और ये जो स्कूल बॉय है, ही इज कमिंग लेट टू द स्कूल। व्हाई? ड्यू टू द रेनिंग। But we have to understand here that due to the heavy rain, the sun is unable to raise in the sky or arise in the sky, and due to that only uh, here the boy who is compared with the sun is also arriving to the school lately. So the schoolmaster is quite angry with the boy who is attending the school quite late. So what he says, like a schoolboy quickly entering and covering at the back of the class to evade attention of the angry schoolmaster. सन को उन्होंने एक स्कूल बॉय से कंपेयर किया हुआ है जो कि लेट आता है स्कूल में, और लेट पहुंचकर क्लास में वो अपने स्कूल मास्टर की डांट नहीं सहना चाहता या फिर डांट नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो उनका ध्यान हटा के he wants to avoid the attention of his school master who will be angry with him, and so he tries to evade the attention of the schoolmaster and goes back in the class and sits down. So जो बच्चा स्कूल में लेट आता है वो अपने स्कूल मास्टर की डांट नहीं सहना चाहता, इसलिए उनका पूरा ध्यान हटा के या फिर अवॉइड करके वो चुपचाप पीछे जाके बैठ जाता है। इसी प्रकार ये जो सूरज है जो बहुत ही लेट उग चुका है, या फिर ड्यू टू द क्लाउड्स ही इज अनेबल टू अराइज और द सन रेज आर अनेबल टू रीच टू द लैंड और टू द अर्थ, तो उन्होंने यहाँ पे उसको उस स्कूल बॉय की तरह ही कंपेयर किया हुआ है जो स्कूल में लेट आता है। और ये भी सन जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है और चुपचाप से निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। बहुत ही तेज ऐसी धूप उसकी नहीं दिखाई देती है, तेज उसकी किरणें हमें नहीं दिखाई देती है, बल्कि बहुत ही चुपचाप से वो सामने आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट शी सेज, सी स्लोली द सन बिगैन टू टर्न येलो and with that its light scattered in all directions. Seeing the light, the schoolmaster asked, "Where have you been all this while? Was your slate not clean, or did you not get enough to eat? Is this the time for sun to rise?" तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सन को या फिर सूरज को यहाँ पे लेट स्कूल बॉय से या फिर लेट स्कूल स्टूडेंट से कंपेयर किया हुआ है, तो वो यहाँ पे कहती है कि धीरे धीरे जो ये लेट उगा हुआ सूरज है वो किसी न किसी प्रकार से अपनी रोशनी फैला रहा है, एंड जब भी वो शांत भी हो गया है लेकिन फिर भी धीरे से वो he is turning yellow, but he is not that bright or what we can say that much shining as usual. So and with that its light scattered in all directions. धीरे धीरे वो अपनी रोशनी फैला रहा है, अपनी किरणों को धरती तक लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोज की तरह पूरे ताकत से वो ग्लो नहीं कर रहा है, या फिर उसकी जो रोशनी है वो पूरी ताकत से यहाँ पे धूप नहीं फैला रही है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कुछ बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है, इसलिए ये सब दिख रहा है। Seeing the light, the schoolmaster asked. Seeing the light means the late school boy here. Late school boy को देख के स्कूल मास्टर कहता है, Where have you been all this while? अब तक कहाँ थे?
तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हें पता नहीं है स्कूल कब शुरू होता है? Was your slate not clean or did you not get enough to eat? इतना पेल क्यों दिख रहे हो तुम? इतना शांत, इतना निस्तेज, इतना येलो क्यों दिख रहे हो? रोज तो बहुत ही ब्राइट दिखते हो तुम, आज क्यों इतना पेल दिख रहे हो, येलो दिख रहे हो? तो वो कहता है इज दिस द टाइम फॉर सन टू राइज? और इतनी लेट आए हो स्कूल में, तो ये कोई वक्त है आने का, ये कोई टाइम है सूरज के उगने का, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। आगे क्या कहती है देखिए पद्मा जी। By now the sun was shining in all its splendor. It answered proudly, what is the point of getting annoyed? There is no set time for sun to rise. Whenever it rises, that is sunrise. तो ये अरोगेंस है जो कि यहाँ पे वो स्कूल बॉय के थ्रू या फिर सन के थ्रू हमें दिखाई देता है। जो अरोगेंट और बहुत ही मिस्चुअस बच्चे होते हैं, तो वो किस तरह से जवाब देते हैं अपने स्कूल मास्टर के डांटने पर। तो उसी प्रकार का कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे पोएट ने भी किया हुआ है सन के बारे में, सूरज के बारे में, या फिर उस स्कूल बॉय के बारे में। वो कहती है देखिए, बाय नाउ द सन वॉज शाइनिंग इन ऑल इट्स स्प्लेंडर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो येलो सन था वो अब ब्राइट दिख रहा है। अब वो मिक्सअप हो चुका है बच्चा जो लेट आया हुआ था स्कूल में, और धीरे धीरे ही हैज गैदर्ड द करेज टू आंसर द क्वेश्चंस और थ्रेट्स ऑफ हिज स्कूल मास्टर। और वो कहता है देखिए, इट आंसर्ड प्राउडली। What he answered, the schoolboy answered proudly. What is the point of getting annoyed? मैं तो आया हूँ स्कूल में। What is the point of getting annoyed? अब तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं आया तो हूँ स्कूल में, चाहे देर से भी आ जाओ, मुझ पे एंग्री मत होना या फिर मुझे डांटना मत। What is the point of getting annoyed? बहुत ज्यादा annoy मत करना, चिढ़ना नहीं है मुझ पे, ऐसा वो यहाँ पे कहता है। देर इज नो सेट टाइम फॉर सन टू राइज। मैं सूरज हूँ और जब मेरा मन करे मैं निकल आता हूँ। दैट इज द पॉइंट ऑफ दैट इज द टाइम ऑफ सनराइज। तो वो कहता है कि मैं सूरज की तरह हूँ, जब भी मेरा मन चाहे मैं स्कूल में आ जाता हूँ, एंड दैट इज द टाइम ऑफ सनराइज। तो वो कहता है कि जब भी मेरा मन चाहे मैं निकलूंगा, मैं सूरज हूँ, और वही होगा क्या कह सकते हैं हम उसे, वही होगा सवेरा। वो कहता है कि what is the point of getting annoyed? What is the point of getting annoyed? There is no set time for sun to rise. ऐसा कोई टाइम है क्या, फिक्स टाइम, कि 3 बजे ही इन द अर्ली मॉर्निंग, 3 बजे, 4 बजे या फिर 5:30 पर ही सन को स्काई में आना चाहिए और उसकी जो किरणें हैं वो धरती तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा कोई सेट टाइम नहीं है सूरज के उगने का। तो वो कहता है देर इज नो सेट टाइम फॉर सन टू राइज। इन द सेम मैनर देर इज नो सेट टाइम फॉर द अरोगेंट स्टूडेंट टू कम टू द स्कूल। सो whenever it rises, that is sunrise. So जब भी सूरज उगे वही सवेरा है, और जब भी बच्चे स्कूल में आए तभी स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हमारी अरोगेंस बढ़ जाती है तो किस प्रकार से बच्चे आंसर करते हैं, वही यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की हुई है। तो जो भी कुछ नेचर के रूल्स हैं वो सभी के लिए समान होने चाहिए, ना कि किसी और के लिए अलग और हमारे लिए अलग, ऐसा। तो जब वो अलग हो जाते हैं तो अरोगेंस बढ़ जाता है। ये एक सुंदर सा मैसेज पद्मा सचदेव जी ने यहाँ पे हमें देने की कोशिश की हुई है फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे